एप्टीट्यूड था मैम काफ़ी टफ अगर, क्योंकि एप्टीट्यूड एक ऐसा राउंड होता है ना जिसमें वो लोग 90% कैंडिडेट्स को हटा देते हैं, केवल 10% ही फिल्टर आउट हो पाते हैं। टेक की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाओगे अगर आप इसी ब्रांच से हो। तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। But before getting selected, how many other companies did you apply? मैं डेवलपमेंट को पहले करता है डीएसए से, क्योंकि डेवलपमेंट मैंने बाद में करा, इसकी वजह से थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में जो हैकाथॉन्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज थी उनसे मिस हो गई। Hi everyone, and today we're going to interview Naman. Naman is our Delta Batch student who has recently secured an internship at Goldman Sachs. अब Naman is an EC background student, तो नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ उन्होंने किस तरीके से एक बहुत ही अच्छी खासी टेक इंटर्नशिप की तैयारी की, आज हम कंप्लीट नमन की टेक जर्नी के बारे में जान रहे होंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट हिज जर्नी। चलो नमन, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। So good afternoon, ma'am. My name is Naman Umar. I am from Kanpur, Uttar Pradesh. I have completed both my high school and intermediate education in Kanpur, and currently I am in my third year of pursuing BTech in electronics engineering from SUNIT Surat. And recently I got an internship offer from Goldman Sachs. ओके, तो गोल्डमैन सैक्स के अंदर यू सिक्योर्ड एन इंटर्नशिप। टेल अस अबाउट द एंटायर एक्सपीरियंस कि गोल्डमैन सैक्स ने कितने राउंड्स लिए, हर राउंड के अंदर व्हाट वाज द प्रोसेस, किस तरीके के सवाल पूछे गए, वो सारा आप बताएं। तो मैम ये एक ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी थी। इसमें मतलब इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम था, उसके अंडर ये कवर हुआ था। सो इसके फॉर्म्स अगस्त के एंड में आए थे, एंड आफ्टर 50 days आई गॉट अ मेल दैट माय रिज्यूमे हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड, एंड द नेक्स्ट राउंड विल बी एन एप्टीट्यूड राउंड। सो सितंबर के एंड में मेरा एक एप्टीट्यूड राउंड हुआ। इट कंसिस्ट बेसिकली 70 क्वेश्चंस which I have to do in 90 minutes. ओके, The level of the questions I can say in medium level. All the questions were good, divided into 6 sections. The first section was I don't know the sequence, but it was basically numerical computation, numerical reasoning, logical reasoning, abstract reasoning, diagrammatical reasoning, and verbal reasoning. These are all the 6 sections, and I have to complete it in 90 minutes. So I completed 54 questions, ओके, and after in the month of October, I got the mail that yeah, you cleared that aptitude round, and the next round is an online assessment. So the online assessment happened in the month of October at the end. It is basically consist of 3 sections. First was coding questions based on DSA. It consists 3 questions. The first was an easy level question. Second was medium, and the third was hard. And there were also 10 MCQ questions, which was based on the CS fundamentals and some of the coding concepts that we usually learn during DSA and language programming language. And the third section was a subjective question. Like they will give you some situation and you have to describe it in 150 or 200 words. सो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस डिड दे गिव? In my case, it was given that you are working in a Puro project, and there was a one member who is facing some issue. So how will you tackle that problem and tackle his problem, as well as how will you continue the group work that is going on in the project? So that was the situation that is given to me, and 3 coding questions थे, तो उसमें first I completed 2 coding question in that, and I got selected based on that 2 coding. The hard one, DP one, I didn't get. ओके, सो इन टोटल देयर वर 3 राउंड्स हाँ. and you cleared all of the rounds. Was there also a one-on-one interview? Yes. These 2 rounds happened. After that, I got a mail that your interview will be at the end of the November. My dates were 27 and 28 November. So on 27 November there were only one round. एक राउंड हुआ था मेरा, तो उस राउंड में बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ, and then he asked me some normal question that you belong to an electronics engineering branch, then how would you manage all these things despite being in this branch? So this one, and then followed by 2 DSA questions. Mm, in that interview, the coding level was easy to medium. The 2 questions were, first was based on basic string and hash map, and the second one was a array with hash map. ऐसा. And in the evening I got the mail that you are qualified for the second round. The next day 2 round happened. पहले राउंड में फिर से वही बेसिक इंट्रोडक्शन, देन इन दैट राउंड ही आस्क्ड टू डिस्क्राइब माय प्रोजेक्ट आल्सो। तो मैंने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया। फिर उन्होंने मुझसे जो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस होता है, आप प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हो, उसमें हमारा 10 to 15 मिनट्स का अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। इसमें उन्होंने अपने बैकएंड को फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट करा, एपीआई कौन सी यूज़ करी, एक एपीआई अगर डिफरेंट डोमेन्स में तो क्या वर्क कर रही है आपके प्रोजेक्ट में कि नहीं वर्क कर रही है, ये सब पूछा। एंड देन एक डीएसए क्वेश्चन उसके बाद पूछा जो जो था, मतलब हाँ, ओके लेवल था, मीडियम टू हार्ड। एंड देन that interview wrap up,
एंड बोथ द इंटरव्यू उसमें कोडर पैड का भी यूज़ करा था, मतलब आपको कोड पूरा उनके सामने लिख के बताना पड़ेगा, तो ऐसा था। फिर थर्ड राउंड हुआ, उसमें भी बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। उन्होंने मतलब काफ़ी वो कूल इंटरव्यूअर थे, उन्होंने मुझसे पूछा मतलब कैसे हो, कैसा दिन गया, खाना खाया, नहीं खाया? एंड देन उसके बाद बस उन्होंने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिया, उसके बेसिस पे कुछ डेटाबेस को लेके क्वेश्चन पूछा और कुछ बेसिक क्वेश्चन प्रोजेक्ट को लेके पूछे। बस इस तरह से रैप अप हो गया पूरा इंटरव्यू एंड तो इन टोटल आपके करीबन 5 राउंड्स हुए, हाँ, जिसमें से फर्स्ट वाज योर एप्टीट्यूड राउंड, सेकंड वन वाज योर ऑनलाइन असेसमेंट अलोंग विद कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स एमसीक्यू, एंड उसके बाद यू हैड 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, जिसमें से फर्स्ट 2 डीएसए एंड आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस थे, एंड द लास्ट राउंड वाज काइंड ऑफ एन एचआर राउंड। प्रोजेक्ट बेस्ड एनएचआर है। लास्ट वाज प्रोजेक्ट बेस्ड एंड एचआर राउंड। ओके, एंड इस पूरे जो 5 राउंड्स हुए इसके अंदर करीबन 3 मंथ्स का टाइम लगा आपको? या अगस्त टू नवंबर। ठीक है, अगस्त टू नवंबर। ऑलराइट। सो टेल अस मोर अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी। व्हेन डिड यू स्टार्ट कोडिंग? किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया? क्या-क्या टेक्नोलॉजीज आपने सीखी? सो मैम फर्स्ट सेमेस्टर में हाँ, सब्जेक्ट था हम लोग का एचसीपी, उसमें हम लोग को सी लैंग्वेज सिखाई जा रही थी। तो उस समय तो फ़ैमिलियर था नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी। तो सी लैंग्वेज वहाँ पे सिखाई जा रही थी, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि सीखते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले उसका आपका जो वन शॉट था 10 आवर्स का, तो उससे मैंने उस सेमेस्टर पूरी सी लैंग्वेज से प्रिपेयर करी। साथ में सीनियर से पूछा कि मतलब डीएसए मुझे करना ही था, तो डीएसए के लिए मतलब कौन सी लैंग्वेज सही होगी, सी प्लस प्लस या जावा? तो वहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर सी प्लस प्लस में ही कर रहे थे, तो मैंने वही पाथ चूज़ करने का डिसाइड करा, क्योंकि उसमें डिस्कशंस काफ़ी हो सकते हैं और कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे सी प्लस प्लस को लेके। तो सी प्लस प्लस से स्टार्ट करा, उसके बेसिक सीखे और सेकंड सेमेस्टर के मिड में मैंने डीएसए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो बेसिक डीएसए कांसेप्ट सीखे, वही बिट मैजिक, बिट मैनिपुलेशन, मैथमेटिक्स, एरे, दिस। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर मेरा खत्म हो गया। थर्ड सेमेस्टर से मैंने फिर थोड़ा डीएसए के साथ-साथ वेब डेवलपमेंट को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा। एचटीएमएल, सीएसएस सीखा वन शॉट से, जो आपके हैं चैनल पे अवेलेबल इससे। और देन उसी समय डेल्टा का 3.0 कोर्स आ गया था दिवाली के टाइम नवंबर में। तो मैं वैसे भी क्लूलेस था कि मतलब सीएसएस के बाद कोई कंटेंट तो अवेलेबल था नहीं आपके चैनल पे, उसका जावास्क्रिप्ट वगैरह का, उस समय आपकी सीरीज़ नहीं आई थी मतलब। तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिखी, मैंने कोर्स खरीद लिया और उसको 2 वीक तक फॉलो करा। लेकिन उसके बाद फिर मेरे एंड सेम एग्ज़ाम आ गए थे, तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई और थर्ड सेमेस्टर खत्म हो गया। देन फोर्थ सेमेस्टर मैंने फिर कंटिन्यू करा, जावास्क्रिप्ट सीखा एंड देन मैं फिर डीएसए में शिफ्ट हो गया। तो डीएसए करा फोर्थ, तो सेकंड ईयर के एंड तक मतलब मेरा डीएसए कंप्लीट हो गया था। 2 मेजर टॉपिक रह गए थे, ग्राफ एंड डीपी। सो फिर हम लोग का समर वेकेशन आ गया, तो उसमें था कि बस समर वेकेशन में जितनी मेहनत करनी सब करनी, क्योंकि उसके बाद कंपनीज़ आना स्टार्ट हो जाएँगी इंटर्नशिप के लिए। तो पूरा फ़ोकस था कि रेज़्यूमे को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैंने फिर से डेवलपमेंट को स्क्रैच से स्टार्ट करा छुट्टियों में। पूरा डेल्टा बैच खत्म करा, पूरा उस छुट्टियों में 3 मंथ के गैप में मैंने खत्म करा। जितने आपके प्रैक्टिस प्रोजेक्ट थे वो बनाए, एक मेजर प्रोजेक्ट बनाया एंड प्लस मैंने सीएस फंडामेंटल सीखे, जैसे कि ऊप्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब। और बस फिर फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, उसमें मैंने फिर डीएसए इन ग्राफ कवर कर लिया, डीपीएन ग्राफ डीएसए में। एंड बस फिर नेक्स्ट मंथ से इंटर्नशिप के लिए कंपनी कॉलेज मैंने स्टार्ट हो गई एंड एट द एंड ऑफ द नवंबर आई गॉट दैट इंटर्नशिप। तो इन योर एंटायर इंटर्नशिप प्रिपरेशन का जो आपका जर्नी रहा, उसके अंदर आपको लगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रैक इंटर्नशिप्स? यस मैम, अगर मतलब प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है, क्योंकि जितने भी ओए होते हैं कंपनीज़ में, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम लोग को लिमिट टाइम कंस्ट्रेंट में करने होते हैं। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम लोग को ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि आपको 6 क्वेश्चन है गिवन टाइम कंस्ट्रेंट में करने हैं, प्लस उसमें इतने सारे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स होते हैं। तो हम लोग को जब ओए देते हैं, अगर हम लोग को प्रैक्टिस है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने की, तो हम लोग ओए में आने वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से डरेंगे नहीं और प्लस हम लोग को टाइम बाउंडेड पीरियड में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होती है, तो उन लोग को ओए में हेल्प करता है। प्लस अगर प्रोफाइल आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली वो एक एडवांटेज होता है रिज्यूमे में आपका। Okay. So regarding projects, what kind of questions were you asked in your interviews? Regarding projects, okay. So first one I have to let they ask me the whole deployment process, like how do you have link backend with the front end, and which type of API did you used, and if your backend and front end servers are both in different domains, then this thing will work in your project or not. They have asked me this question, and in the last one they have asked me why do you used MongoDB in your project instead of SQL, and also asked me to write some queries based on my project. And there was one functionality in my project, appointment system. So they asked me how is the workflow of that appointment going on in the admin section, in the user section. So I explained all these things. Okay.
And what was the role of communication skills in the entire process? कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ डेफिनिटली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको कुछ कहना चाहते हो और वो ढंग से आप कह नहीं पा रहे हो, इंटरव्यू को कन्वे नहीं कर पा रहे हो, तो उसका फिर कुछ यूज़ नहीं होता ख़ास। आपको ऐसे का क्वेश्चन आता है बट आप अपनी अप्रोच उनको समझा नहीं पा रहे हो, तो फिर इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम एंड So how did you work on your communication skills apart from tech preparation? Did you do anything else? Did you do something बिफोर इंटरव्यू आई यूज्ड टू प्रैक्टिस विद ChatGPT वॉइस। Okay. It gives me suggestions how to give feedback, मतलब gives feedback on my voice, and also do practice, do watch YouTube videos with English subtitles and all, and in front of mirror I also practice sometimes. Okay. So Naman, you got selected for Goldman Sachs internship, but before getting selected, how many other companies did you apply to? मैम अगस्त से सितंबर में, मतलब नहीं, जुलाई से सितंबर तक मैंने लिंक्डइन पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी ऑफ कैंपस, मैंने सब में अप्लाई करा था लगभग। जो सीनियर्स बता रहे थे, जो लिंक्डइन साइड थे, मैंने सब पे अप्लाई करा था, प्लस ऑन कैंपस भी कंपनीज़ आ रही थी। तो ऑफ कैंपस में ऐसा था कि मतलब मेल का रिप्लाई आता ही नहीं था, काफ़ी सारी कंपनी से आता था तो रिजेक्शन का आता था। 2-3 कंपनी का ओए का लिंक भी आया था, मैंने क्लियर भी करा था पर उनका मेल नहीं आया फिर फर्दर। और बाकी ऑन कैंपस भी कंपनीज़ आई थी कॉलेज में, तो उसमें भी ओए ऐसा रहता था कि ऑनलाइन होता था ओए। तो उसमें जब तक अगर आप सारे करेक्ट ना करो, तो वो आपका शॉर्टलिस्टिंग नहीं होता था ऑफ ऑन कैंपस में। तो मेरा हर बार ऐसा हो जा रहा था स्टार्टिंग की 2-3 कंपनीज़ में कि एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ मेरा छूट जा रहा था। तो उसकी वजह से मेरी शॉर्टलिस्टिंग उसमें आ नहीं पा रही थी। बस यही था। तो उस टाइम पे जब आपको ऐसा फील होता है कि तैयारी हमने की है, वी आर फेसिंग रिजेक्शन, तो हाउ डिड यू हैंडल दैट सिचुएशन? बस मैंने भरोसा रखा, मम्मी-पापा से बात करी, उन्होंने कहा कि हार मत मानो, मेहनत करते रहो। ठीक है। तो जब फाइनली आपकी इंटर्नशिप लगी तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मैम उस समय हम लोग के एंड सेम चल रहे थे जब मुझे मेल आया था, मतलब मैं पढ़ रहा था एंड सेम के लिए, शाम का टाइम था। तो बस मेल आया, मैं बहुत खुश हुआ, सब दोस्तों को बताया, घर में कॉल करा, तो बस उस कॉल पे समझ आ रहा था कितनी खुशी हुई होगी, मम्मी को बताया, तो खुश हुए, मम्मी-पापा को बताया। बस बहुत अच्छा मोमेंट था वो। So what is the stipend for Goldman Sachs internship? स्टाइपेंड आई डोंट नो क्लियरली, आई डोंट नो बट इट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख। 1 लाख पर मंथ। ठीक है, तो टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम एप्टीट्यूड इन द एंटायर प्रोसेस। आपको क्या लगी? For fintech company, I think quant aptitude does play a very important role because um, the first round was quant aptitude round, which have 70 questions which I have to do in 90 minutes. So you must be accurate because I forget one thing, that in the quant aptitude round there was +5 for correct marks and -2 for negative marking also. ओके, नेगेटिव So you must have to be accurate in that round also. So quant aptitude is important for Goldman Sachs and for some other companies also. तो इन टोटल अपनी जो इंटर्नशिप की तैयारी है, उसमें आपने कितने मंथ्स की आपकी प्रिपरेशन रही होगी? Internship 12 to 13 months you can say. Like I have to cover full DSA, then CS fundamentals, development. It took me around 12 to 13 months. ओके। एंड व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीजीपीए इन द एंटायर प्रोसेस? मैम गोल्डमैन सैक्स के लिए तो सीजी इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि हम लोग के फ्रेंड सर्कल ने जितने ने भरा था सबको एप्टीट्यूड तक की तो आ गई थी लिंक, या एप्टीट्यूड के लिए आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है। उसमें कुछ की सीजी 7 से कम भी थी, तब भी उनको आ गया था लिंक। लेकिन ऑन कैंपस जितनी भी कंपनी आती हैं, उससे मोस्ट ऑफ द कंपनी में कि मैंने ऑब्जर्व करा है कि हाँ, वो 7 सीजी का क्राइटेरिया रखते ही रखते हैं। और कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है कि मतलब 7 सीजी का क्राइटेरिया रखा, उसके बाद आपने ओए क्लियर भी कर लिया, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। देन वो इंटरनल सीजीपीए का क्राइटेरिया और लगाते, तो उसमें 8.5 के ऊपर वालों को ही सेलेक्ट करते हैं, कुछ कंपनी ऐसे भी होती हैं। तो अगर ऑन कैंपस आपको कुछ कंपनी क्रैक करनी है, तो उसके लिए मेरे कॉलेज में तो 8.5 इज़ द स्वीट पॉइंट टू हैव। ओके। तो उसमें सीजीपीए काफ़ी इंपॉर्टेंस लगती है। एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स? फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज़ में। फ्रॉम यस। ठीक है। अच्छा, इफ वी कुड सेंड यू बैक टू योर फर्स्ट ईयर और आपको री-प्रिपेयर करना होता फॉर योर इंटर्नशिप, आप कोई कुछ चेंज लेके आते अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, या आप किस तरीके से प्रिपेयर करते अगर आपको दोबारा करना होता तो? फर्स्ट ईयर में ना मैंने काफ़ी सारा टाइम अपना यूट्यूब से, मतलब कब रैंडम वीडियोज़ देखने में काफ़ी निकाला। जैसे मतलब कोई भी टॉपिक मैं कर रहा था, तो कभी मैंने इस चैनल से पढ़ लिया, कभी किसी दूसरे चैनल से पढ़ लिया। तो वो एक गलती थी जो मैंने फर्स्ट ईयर में करी। अगर मैं फिर से स्टार्ट करता, तो मैं फर्स्ट ईयर से ही एक वेल ऑर्गनाइज़्ड कोर्स ले लेता डीएसए का,
और उसी में ऑर्गेनाइज़ में करता, क्योंकि मेरे पास पता होता कि मेरे पास मुझे कितना करना है और एक ऑर्गेनाइज़ कंटेंट होता, प्लस मैंने उसको पैसे दिए तो एक मोटिवेशन होता है इनर करने के लिए। तो मैं डीएसए को जल्दी कंप्लीट कर पाता। प्लस एक चीज़ और मैं चेंज करता, मैंने इनिशियल डेज़ में डीएसए को ज़्यादा फ़ोकस दिया इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट। तो मैं डेवलपमेंट को पहले करता डीएसए से, क्योंकि डेवलपमेंट मैंने बाद में करा, इसकी वजह से 3rd एंड 4th सेमेस्टर में जो हैकाथॉन्स वगैरह की अपॉर्च्युनिटीज़ थी वो मुझसे मिस हो गई, क्योंकि मैं इतना स्किल थी नहीं मेरे पास करने की, तो मेरी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिस हो गई। तो अगर मैं इस समय स्टार्ट करता तो मैं फर्स्ट ईयर में कोर्स लेता अच्छा-सा, उससे डेवलपमेंट प्रिपेयर करता पहले, एंड साथ-साथ जो साइड वाइज़ कॉलेज में लैंग्वेज सिखाई जा रही है उसको सीखता, एंड देन डेवलपमेंट मिड ऑफ 2nd सेमेस्टर तक हो जाता, तो उसमें फिर मैं हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकता था, एंड देन डीएसए कंटिन्यू करता। तो ये सब गलती मैं अवॉइड कर सकता था। You were not able to participate in hackathons because of that, क्योंकि आपको टाइम कम मिला। शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती थी, मतलब इतनी स्किल्स नहीं थी तो। ठीक। अच्छा, इन योर रिज्यूमे डू यू थिंक देयर इज़ अ वाओ फैक्टर जिसने हेल्प किया आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कराने में? Wow factor, ma'am, you can say my academic consistency that my resume reflect. Like I have scored good marks in my 10th, in 12th. Plus I have a good CGPA in my college also. Plus What my was your current CGPA? current CGPA is 8.7. So and also my coding profile, which reflect that how consistent I am in my coding platforms. So this can be the wow factor. And the second thing also, I have worked on some group projects. Plus, I am a web dev lead in one of my college club also, so which reflect my team working capabilities. So ठीक this है। are the लेट्स सपोज देयर इज़ अ जूनियर ऑफ योर्स जो 2025 के अंदर इंटर्नशिप्स के अंदर बैठने वाले हैं, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन जूनियर्स के लिए? हाँ, तो मेरी सबसे पहली एडवाइस तो ये रहेगी कि जब भी आप मतलब बैठो इंटरव्यू के सामने, हमेशा हमें कभी भी नर्वस नहीं होना है। उनके सामने कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी आंसर देना है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ देना है। जितना बोलो क्लियर बोलो, कंसाइज़ रहो अपने आंसर को लेके। प्लस जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आप पहले थोड़ा रिसर्च करके जाओ, उस कंपनी के बारे में जानो, किस रोल के लिए वो हायर कर रही है उस रोल के बारे में जानो, ये एक एडवाइस होगी। एंड द थर्ड थिंग कि जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग को पता है कि पूछने ही वाले हैं इंटरव्यूअर। जैसे कि हम लोग का रेज़्यूमे जो हम लोग ने भेजा, तो उस रेज़्यूमे का हमें एक-एक वर्ड पता होना चाहिए, हमने जो रेज़्यूमे में लिखा है। तो आप रेज़्यूमे को वेल प्रिपेयर्ड करके जाओ पहले से। इंट्रोडक्शन हो गया आपका, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप इंटरव्यूअर को अलाइन कर सकते हो फर्दर वो किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें कोई ऐसी चीज़ें ऐड करो जिसमें आप अच्छे हो। तो इंट्रोडक्शन को पहले से तैयार करके जाओ, कुछ क्वेश्चन्स को पहले से प्रिपेयर करके जाओ, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है इंटरव्यू के ऊपर। एंड बस कम्युनिकेशन में क्लियर एंड कंसाइज़ रहो, कॉन्फिडेंट रहो। एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर जूनियर्स हू आर मे बी इन देयर फर्स्ट और सेकंड ईयर जो फर्स्ट टाइम कोडिंग करने की शुरुआत करने वाले हैं? सो उनको यही कहेंगे कि एक्सप्लोर करो, एक अपनी लिए अच्छी सी लैंग्वेज ढूँढो, एक वेल ऑर्गनाइज़, मतलब वही जो मैंने कहा कि मतलब किसी भी रैंडम यूट्यूब वीडियो से मत देखो, चैनल शिफ्ट मत करो, एक कोर्स को पकड़ो, उसी को फॉलो करो थ्रू आउट योर जर्नी, और उससे क्या ऑर्गनाइज़ भी रहेंगी चीज़ें और आप पूरा कंटेंट कवर भी कर रहे होगे। तो इस तरह से आप आगे बढ़ो, साथ में फर्स्ट ईयर है तो कॉलेज भी एक्सप्लोर करते चलो, सेकंड ईयर से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। So you yourself are an EC student, you're a non-computer science student. So what was the most challenging part for tech placement preparation? मैम यही था कि हम लोग के सब्जेक्ट्स तो ऐसे होते नहीं थे जो हम लोग को हेल्प करें इन प्रिपरेशन में, तो हम लोग को अलग से टाइम निकाल के पूरा करना पड़ता है। तो वही चैलेंजिंग पार्ट था कि मतलब जब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं तो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले 10-15 डेज़ हम लोग को टोटल उधर डेडिकेट करने होते हैं ताकि सीजीपीए हम लोग की खराब ना हो। ऐसे ही मिड सेमेस्टर में 1 वीक पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है और बाकी टाइम फिर डेडिकेटली हम लोग को टेक प्रिपरेशन में देना पड़ता है। तो वही एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। And what was the most challenging process of the entire Goldman Sachs interview process? What was the most challenging part of the entire interview process? Yeah. एप्टीट्यूड था मैम काफ़ी टफ था, क्योंकि एप्टीट्यूड एक ऐसा राउंड होता है ना जिसमें वो लोग 90% कैंडिडेट्स को हटा देते हैं। केवल 10% ही फ़िल्टर आउट हो पाते हैं। सो एप्टीट्यूड निकल गया तो वही काफ़ी अच्छा था। एंड देन फर्स्ट राउंड जो था मेरा वो काफ़ी अच्छा हुआ था। मैंने मतलब कोडिंग क्वेश्चंस तुरंत कर दिए थे, मतलब उनके सामने फर्स्ट टाइम में सारे टेस्ट केस मेरे रन भी हो गए थे। तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ा था, वो एक मेमोरेबल पार्ट था। लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन दिए, दोनों मैंने अप्रोच तो पता था कैसे करना है, पर होता है ना कि आप कोड कर रहे हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएँगी, सिंटैक्स एरर हो जाएगा, कहीं पे कुछ वेरिएबल का नाम में कुछ गलती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरा। फर्स्ट टाइम में कोड दिया, पूरा का पूरा वो रन हो गया था दोनों केस में, तो वो काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस था मेरा। Nice. Acha, did you also have plans to participate in programs like GSOC or something else? ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का मैम
प्लान तो नहीं करा है कि मतलब पार्टिसिपेट करूँगा। अभी तो ये सोचा है कि हाँ, मशीन लर्निंग वगैरह मैं सीखूँगा थोड़ा अपने अपकमिंग सेमेस्टर में। तो उस पे थोड़ा एक प्रोजेक्ट बनाने का सोचा है। ठीक है। तो और कुछ जो आप बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में? या कोई स्टूडेंट्स के लिए और कोई एडवाइस जो उनको फॉलो करनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट हो सकती है? स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट जो मे बी इसी बैकग्राउंड से ही आ रहा है। कॉलेज में ना फ्रेंड सर्कल का इम्पोर्टेंस बहुत होता है, कि अगर आप इसी बैकग्राउंड में आ रहे हो, तो इसी बैकग्राउंड में क्या होता है, आपके सब्जेक्ट्स होते हैं काफ़ी टफ होते हैं। मतलब सीएस से कंपेयर करोगे तो एनालॉग सर्किट्स आ जाएगा, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाएगा, तो सर्किट से आप College EC was the toughest grams. Yes, I think in every college Yes. EC is the सो इट toughest. इज़ वेरी टफ। आपको मतलब सर्किट से डील करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अगर आप अकेडमी से चले जाओगे तो आप पूरा सेमेस्टर पढ़ते रहोगे, तब भी आपका शायद अच्छे से ना हो पाए। तो उसमें आप टेक की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाओगे अगर आप इसी ब्रांच से हो। तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर अच्छे फ्रेंड सर्कल आपने बना रखा है, तो वो पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएँगे, तो आप एकेडमिक्स को कम टाइम देकर भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो कॉलेज में फ्रेंड सर्कल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे फ्रेंड सर्कल जो पढ़ने में अच्छे हों, आपको पढ़ा सकें, प्लस वही जो टॉपर के नोट्स होते हैं, और प्लस एक एडवाइस, अगर अच्छे स्कोर करना है तो हम लोग में पीवाईक्यू हम लोग को मिल जाते हैं सीनियर्स के थ्रू। तो पीवाईक्यू का काफ़ी पैटर्न मैच हो जाता है करंट पेपर्स में। तो इन सबसे गुड सीजीपीए मिल जाती है विथ लेस एफर्ट्स, सो यू कैन गेट टाइम टू प्रिपेयर विद द टेक। ठीक है। आपने अपने एकेडमिक्स और टेक प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस किया? बस हम वही अच्छे दोस्त बनाए, वही मिड सेम से 1 वीक पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करता था। जैसे कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग को यूट्यूब से लेक्चर्स देखने होते हैं, तो वैसे सब्जेक्ट के लिए पहले से लेक्चर्स देख के रख लेता था। और एग्ज़ाम के टाइम पे तो वही एक जो ऐसा बंदा होगा जो क्लास जाता है डेली, उसके नोट्स उठाए, सिलेबस लिया, पढ़ना स्टार्ट करा। ग्रुप स्टडी हम लोग करते हैं, मतलब बेसिकली ग्रुप स्टडी में क्या होगा, एक बंदा पढ़ रहा है, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो उसको समझ में आ रहा है, तो वो हम लोग को समझा देता है। तो ऐसे करके लास्ट नाइट प्रिपरेशन करके भी हो जाता है। और एंड सेम में वही गैप जो होता है 7 डेज़ से 15 डेज़ हो जाता है, क्योंकि उसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पूरे सेमेस्टर का सिलेबस आ रहा होता है। सो बस बाकी जितना रिमेनिंग टाइम हो गया, वैकेशंस हो गए एंड रिमेनिंग टाइम ऑफ द सेमेस्टर हो गया, उसमें हम लोग डीडीएसए डेवलपमेंट इन सब में। ओके। तो आपकी इंटर्नशिप फिर बैंगलोर में होगी? नहीं, या हैदराबाद लोकेशन। हैदराबाद Yes. लोकेशन, ठीक है। सो डू यू हैव एनी प्लान्स टू डू समथिंग विद योर फर्स्ट स्टाइपेंड? बस यूजुअल थिंग्स, गिफ्ट टू मम्मी पापा। जी। अच्छा, आपके अगर इंटर्नशिप के लिए इफ देयर आर 100 स्टूडेंट्स व्हिच आर सिटिंग फॉर इंटर्नशिप प्लेसमेंट इंटरव्यूज, तो आपको क्या लगता है 100 में से कितने स्टूडेंट्स होंगे जो सीरियसली प्रिपेयर करते हैं मतलब कॉलेज में कि कॉलेज में? मतलब मेरी आपके कॉलेज में? माय इसी ब्रांच स्ट्रेंथ इज 166, सो आउट ऑफ 166 देयर आर 10 to 15 which are purely interested in the core part, like they are doing core projects, joining core clubs, so they are into the core part. And I have observed that 20 to 30 are those who are serious of getting intern placement. Some are that who are preparing for UPSC and higher study like MBA CAT exam preparation. But serious student that I have seen is 30 to 25 to 30, like who are regularly doing coding, maintaining their profiles, doing competitive programming, all things. ठीक है, तो आई होप कि नमन की जर्नी से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, जो हम अपनी जर्नी के अंदर, कोडिंग जर्नी के अंदर जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ हेल्पफुल टिप्स दैट वर शेयर्ड बाय नमन, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हू आर कमिंग फ्रॉम ईसी और मे बी नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, जो टेक प्लेसमेंट्स की तैयारी करना चाह रहे हैं। Naman has definitely been a hardworking student because it is difficult to balance non-computer science subjects along with tech placement preparation, पर वो चीज़ उन्होंने की है and he has finally cracked a really good opportunity in terms of internships. We wish all the best for Naman and we also wish all the best for you. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर। Till then, keep learning and keep exploring. Look, I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let our ties in the hurt.